very good afternoon to all the students. Accountancy, the most important and most interested subject, I think, of commerce students. Today again, last two lectures we have seen the sum. Today also we are going to see the same type of sum of admission of a partner. Students, my humble request to you, you may be doing 100 sums, 200 sums of admission, but better you do 10 sums with a perfect practice. That is much better. Now we are going to see one sum today. Question is not that much different. Balance sheet is there. It's there in front of you. Maybe not much visible, so I will speak loudly so that at least you can listen. Balance sheet is there, and below the balance sheet adjustments are there. Now, not much surprising in the balance sheet. First of all, let's see the question. Sanjana, Alok were partners. Two partners are there, Sanjana and Alok. In the firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. So old ratio is 3:2. Balance sheet is given to you. Creditors are there. Workmen, this is new for you. Workmen compensation fund. One fund we keep on one side for the workers' purpose, for workmen compensation purpose. Means what? By chance during the year, if any accident happened with the workers, we can pay the money from that. So this is workmen accident fund. The amount is also given 60,000. Capital is there for Sanjana and Alok. Here asset side we have cash, then we have debtors minus provision for doubtful debts. We normally call it as bad debt reserve. So provision for doubtful debts 2,000 minus, so it is 144 outside. Then we have stock. Then we have investment and furniture. So this is balance sheet which we normally see in the sum of admission. Now adjustments. On April 2018, they have admitted Nidhi. Third partner is admitted, that is Nidhi, and a new partner, and share is 1/4. What is the share of the new partner? 1/4. Share in the profit of the following terms. Now adjustments are given to you. First adjustment is goodwill of the firm valued 4 lakhs. The value of the goodwill is 4 lakhs. And Nidhi brought the necessary amount in cash. पूरे बिजनेस की गुडविल 4 लाख 4 लाख है. निधि अपना हिस्सा लाएगी. अब निधि का हिस्सा कितना होगा? It is 1/4. We know that. Okay. Now, half of which withdrawn by all partners. मतलब जो गुडविल निधि ला रही है उसमें से आधी गुडविल, हाफ गुडविल जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपने घर ले जाएंगे. This is new topic for you. We will do the effect. We will give the effect very soon. Stock was to be increased by 20%, यानी स्टॉक को 20% बढ़ाना है. एंड फर्नीचर was to be reduced to 90%, यानी फर्नीचर को 90% तक कम करना है. 90% कम नहीं करना है. 90% तक कम करने का मतलब होता है 10% माइनस करना है. देन इन्वेस्टमेंट वेयर टू बी वैल्यू 3 lakhs. इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 3 lakhs के. आलोक टू ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, यानी आलोक एक पार्टनर है, वो इन्वेस्टमेंट ले जाएगा. जो भी इन्वेस्टमेंट 3 lakhs के है वो मार्केट वैल्यू 3 lakhs है. निधि ब्रॉट 3 lakhs एज हर कैपिटल. निधि अपनी कैपिटल लाई है. कितनी? 3 lakhs. एंड द कैपिटल्स ऑफ संजना एंड आलोक वेयर एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी संजना और आलोक की जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में आपको रखनी है. क्लोजिंग कैपिटल वो मैं आपको समझाऊंगा. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें यहाँ बनानी है. सो आई एम प्रिपेयरिंग अकाउंट्स हियर राइट नाउ. फर्स्ट आई विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. Then I will prepare capital account.
देन कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये कंपलसरी नहीं है फिर भी मैं बना रहा हूं, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। And last will be balance sheet. Liability amount, asset amount, cash oblique bank account, particular amount, particular amount, credit side, debit side। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, साइड कैपिटल अकाउंट, particular। Now 3 partners we have, Sanjana S, Alok A and Nidhi, Sanjana, Alok and Nidhi, credit side, debit side। Here also particular amount, credit side, debit side। So we have prepared these many accounts. First is evaluation, capital, cash and balance sheet। Now first we should give the effect of capital of old partners Sanjana and Alok। उनकी कैपिटल है 5 lakhs and 4 lakhs। So I will write down here by balance BD, brought down or brought forward, 5 lakhs and 4 lakhs, थर्ड कैश हो गया, कैपिटल हो गया ना। नाउ अब देखिए लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स है। अब क्रेडिटर्स के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सो वी विल डायरेक्टली राइट डाउन क्रेडिटर्स ऑन लायबिलिटी साइड विदाउट चेंजिंग द अमाउंट। सो आई विल राइट डाउन हियर क्रेडिटर्स and creditors value given here is 60,000, 60,000। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ईयर ओवर हो गया है, न्यू पार्टनर केम इन द बिजनेस। अब ये जो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, इन ऑल द सम्स ऑफ एडमिशन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। तो यहां पे मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 60,000 है, रेशियो है 3:2। सो 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑब्वियसली। सो फर्स्ट विल बी 36,000 एंड सेकंड विल बी 24,000। 36,000 and 24,000, 60,000 we have distributed। 3:2 is the old ratio। So creditors हो गया, वर्कमैन हो गया, कैपिटल भी हो गया, liability side is over। Now asset side, first we have given, we got cash 166। So I will write down here cash account through balance BD, balance brought down 166, 1,66,000 cash account, debit side, you can call it as cash oblique bank account। Now debtors के ऊपर तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, nothing was there, so we will copy the same amount on balance sheet asset side। So I will write down here debtors। चाहो तो आप डायरेक्ट अमाउंट बाहर भी लिख सकते हैं। So debtors 144 is there, so I will write down 144। डेटर्स के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए बेटर है जो अमाउंट आपको दी है वही आपको कॉपी करनी है, 144। ओके, नाउ डेटर्स हो गया। नाउ स्टॉक के रिलेटेड एडजस्टमेंट है। सो लेट्स सी,
एडजस्टमेंट डी, सेकंड एडजस्टमेंट, स्टॉक वाज टू बी इंक्रीज बाय 20%, यानी स्टॉक को 20% बढ़ाना है, और स्टॉक मींस असेट, असेट बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, इट्स अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, सो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बाय, नाउ स्टॉक वैल्यू यहां पे कितनी है, वी हैव टू सी, ये देखिए आप, स्टॉक 150 लिया है, 1,50,000, उसके 20% यानी 30,000, so 150 30,000 we will write down here, revaluation credit side 30. Now second effect, asset side, stock 150 तो था ही, plus 30,000 add, so 180 will be there. $1,80,000 will be there. Now after stock we have investment 260, but adjustment is here. Investment were to be valued 3 lakhs. Alok took over the investment at this value. 260 का investment है, लेकिन अभी इसकी वैल्यू क्या है, 3 lakhs. तो 40,000 increase हुआ ना, it's a benefit for the business. So I will write down here investment 40,000. नॉर्मली इन्वेस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट देनी होती है बैलेंस शीट असेट साइड, बट these investments are taken over by partner Alok. So here investment is an asset, and when partner take asset at home, partner will be debited. So in capital account debit side, I will write down to investments, and in the column of Alok, I will write down 3 lakhs. 3 lakh आलोक के कॉलम. ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट हो गया. फर्नीचर 3 lakhs का है. फर्नीचर रिलेटेड यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट हाँ है. हियर फर्नीचर टू बी रिड्यूस टू 90%, यानी फर्नीचर को 90% तक रिड्यूस करो. मतलब कितना माइनस करेंगे, 10%. Some students are doing mistake in the exam also. They reduce 90%. No, they say that reduce to 90% means you have to reduce 10%. So I will write down reduce. और एक बार, furniture is your asset, and when asset reduce, it's a loss for you. So I will write down here to furniture. Now furniture, if you take here 3 lakhs, 10% is 30,000. 30,000. Now furniture reduce, second effect, asset side furniture. Now after 3 lakh rupees there are, we have given the value of the furniture 3 lakhs. From the 10% minus, so 30,000 minus, so it will be 270. 2,70,000. नेक्स्ट, अब ये तो सब हो गया. अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट्स. फर्स्ट एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 4 lakhs. निधि ब्रॉट द नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल. यानी टोटल गुडविल कितनी है, यहां पे मैं आपको समझाता हूं. द टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल 4 lakhs. So it is 4 lakhs. And Nidhi brought her share. Her share is 1/4. So I will write down 1/4. So it is 1 lakh. Okay? निधि कितना लाए हैं, 1/4 यानी 1 lakh. अब ये नॉर्मली जो गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर. ना ओल्ड पार्टनर्स आर संजना एंड आलोक. कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइस. But in the entire sum, new ratio is not given. So we will take old as a sacrifice. So 1 lakh will be distributed in the ratio of 3:2. So 1 lakh 3:2, it means 60,000 for Sanjana will be there and 40,000 for Alok will be there. So I will write down here, जब कोई पार्टनर गुडविल लाता है तो एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. So I will write down cash oblique bank, this account. I will write down here Sanjana's account, and second is Alok's account.
60,000, 40,000, ये हो गया। सेकेंड इफेक्ट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड गुडविल प्रीमियम, in the part of premium goodwill. So 60,000 first partner, second partner is 40,000, third partner dash. अब और एक पॉइंट है गुडविल में यहाँ पे कि हाफ द गुडविल विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर्स, यानी हाफ गुडविल, सॉरी हाफ गुडविल जो है यहाँ पे वो पार्टनर अपने घर पे ले गए. सो नाउ द एंट्री विल बी रिवर्स, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो पार्टनर अब डेबिट होंगे तो यहां पे मैं लिखूंगा डेबिट साइड पार्टनर कैपिटल में, देयर आई विल राइट डाउन कैश अकाउंट. अब तक समझो हाफ यानी आधा, तो गुडविल इसका है 60,000 पहले पार्टनर का, उसका हाफ होगा 30,000 और सेकंड पार्टनर का गुडविल यहां पे दिया है 40,000, तो 40 का हाफ होगा 20,000. घर पे ले गए. सो सेकंड इफेक्ट विल बी इन द कैश अकाउंट क्रेडिट साइड. आई विल राइट डाउन हियर बाय संजना's अकाउंट, बाय आलोक's अकाउंट. Sanjana account and Alok account. The amount will be 30,000 and 20,000. तो गुडविल का पॉइंट फिनिश हो गया, इट्स ओवर. सेकेंड एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया है, इट्स रिलेटेड टू स्टॉक एंड फर्नीचर, वी हैव ऑलरेडी गिवन द इफेक्ट. थर्ड पॉइंट इन्वेस्टमेंट, वो भी हमने कर लिया. आलोक हैज टेकन द इन्वेस्टमेंट, वो भी हमने दे दिया है. Point number 4, निधि brought 3 lakh as a capital. So capital निधि ला रही है तो capital account, cash account, capital account में cash account, निधि के कॉलम में लिखेंगे 3 lakhs और कैश अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड. एंट्री तो पता है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू निधि अकाउंट, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड, निधि के कैपिटल में क्रेडिट साइड. क्रेडिट तो हमने किया, डेबिट करेंगे. आई विल राइट डाउन हियर निधि's अकाउंट, निधि's अकाउंट, और निधि के कॉलम में कितने लिखते हैं 3 lakhs. 3 lakhs. Okay. Now next, the capital of Sanjana and Alok were adjusted in new profit sharing ratio. यानी आलोक और संजना का कैपिटल न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो पहले हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, पर फाइंड आउट करने से पहले एक काम करते हैं, रिवेल्यूशन अकाउंट को हम क्लोज करते हैं. So I will close revaluation account here. This side total is 70,000. So same total I will write down here 70,000. So 40,000 is the balance. 40,000 जो हमारा माना जाएगा प्रॉफिट. So I will write down here divisible profit. Sanjana and Alok. Ratio is what? 3:2. So it means that 24,000 and 16,000. Okay. Same profit we will transfer to capital account. So I will write down here revaluation account. 24,000 and 16,000. हो गया. अब कैपिटल को क्लोज करना है, पहले एक काम करते हैं. ये बोल रहे हैं कि जो भी कैपिटल आएगी संजना और आलोक की, वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी. तो न्यू रेशियो तो है नहीं, तो ढूंढना पड़ेगा. नाउ हाउ टू फाइंड आउट न्यू रेशियो, एवरीवन नोज दिस. मैं आपको समझाता हूं न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं. सपोज यहां पे दिखाता हूं, 3 पार्टनर्स आर देयर, संजना, आलोक एंड निधि. इनका रेशियो है 3:2 और ये आए हैं 1/4 न्यू पार्टनर. बराबर ना, यहां पे है 3/5, 2/5.
बेस्ड ऑन कैलकुलेशन आपने ये सब किए होंगे स्टार्टिंग में। रिमेनिंग रेशियो फॉर्मूला से न्यू रेशियो फाइंड करना है। कैसे करते हैं? 1 माइनस 1/4 न्यू पार्टनर का है ना, वो माइनस होता है, इसको बोलते हैं रिमेनिंग रेशियो फॉर्मूला। सो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। अब फॉर्मूला पता है, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग रेशियो। तो पहले कौन है? संजना। संजना ओल्ड रेशियो पता है 3:2 यानी 3/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग रेशियो इज 3/4, सो इट इज इफेक्टिवली 9/20। संजना। आलोक ओल्ड रेशियो 2/5 multiply by remaining 3/4, this one 6/20। और तीसरा है यहां पे न्यू पार्टनर निधि। अब निधि का तो रेशियो ऑलरेडी है 1/4। स्टूडेंट्स पहले भी हमने ये किया है, और अगर न समझ में आए तो एडमिशन जब स्टार्ट हुआ था चैप्टर वेरी फर्स्ट मे बी सेकंड और थर्ड लेक्चर आफ्टर थियरी आई हैव डन दिस कैलकुलेशन, तो ये आप देख लेना एक बार। सो नाउ निधि का 1/4 है, यहां डिनोमिनेटर में 20 है, यहां भी 20 है, सो टू मेक 20 वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5, numerator and denominator both. Now here it will be 5/20. So new ratio is 9, 6 and 5. So new ratio I will say 9, 6 and 5. 9 raised to 6 raised to 5. New ratio. That way. Students, अगर फिर भी समझ में ना आए, so you can send me or I have yesterday uploaded video, उसमें भी मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहां पे आप मुझे कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नाउ लास्ट एडजस्टमेंट क्लोज करने से पहले हम लोग ये कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। नाउ टू क्लोज कैपिटल अकाउंट सिंपल, आपको पता है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, पहले पार्टनर की बात कर रहा हूं। सो 5 lakhs and then 36,060, so 6,20,000 first partner, 6,20,000 बराबर ना? ओके 5 lakhs then 36,000, 60,000 and 24,000, so obviously 620. Now second partner 4 lakhs and then 480 will be there. Third partner 3 lakhs. Okay. Same I will transfer 480 and then 3 lakhs. Now अब ये बोल रहे हैं सबके अंदर कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है संजना एंड आलोक, उसकी कैपिटल को न्यू रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो पहले एक काम करते हैं, एक साइड पे वर्किंग करनी पड़ती है। सो हियर वी हैव टू डू वन थिंग, इनका जो है इफेक्टिव बैलेंस आएगा 620 तो है ही, मैं यहां पे करता हूं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्टनर है संजना, 620 टोटल है, उसमें से आप 30,000 डेबिट के माइनस कीजिए, सो इट विल बी 590। दूसरा है आलोक, उसका टोटल है 480, है ना, उसमें से माइनस कीजिए 320 डेबिट का टोटल,
क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस किया, सो इट विल बी 160। हुआ 160। अब ये क्या बोल रहे हैं, नॉर्मली हम लोग यही अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे टू बैलेंस CD और ये ले जाते हैं लायबिलिटी साइड, और ये बोल रहे हैं कि यही कैपिटल को आप ट्रांसफर करेंगे न्यू रेशियो। तो अब मैं कर रहा हूं 590 ये प्लस 160, that is zeros will be there, 5, 1 and 7,50,000 रुपीज है। इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बोला था दैट रेशियो वी हैव ऑलरेडी डन देयर। व्हाट वाज द रेशियो दैट वी हैव कैलकुलेटेड देयर, वहां आपने रेशियो जो किया है उसमें न्यू रेशियो अगर आप देखेंगे फर्स्ट टू पार्टनर्स का तो वो होगा 3:2। दोनों के बीच की बात कर रहा हूं, न्यू रेशियो 3:2। ओके, नाउ 750 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो 450 हियर, 450 and 3 lakhs here। फिर से स्टूडेंट समझा रहा हूं क्या किया। पहले मैंने क्रेडिट का टोटल लिखा संजना का, उसमें से उसका डेबिट माइनस किया। इसी तरह आलोक का क्रेडिट का लिखा, उसमें डेबिट माइनस किया। तो दोनों का जो बैलेंस है मैंने यहाँ पे उसका टोटल किया। उसके बाद वो जो टोटल आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशियो में, और जो हमने न्यू रेशियो फाइंड आउट किया उसमें फर्स्ट टू पार्टनर का न्यू रेशियो होता है 3:2। यहाँ कोई इंसिडेंट ऐसा है कि ओल्ड रेशियो भी 3:2 ही है और नया रेशियो भी आपने ढूंढा तो 3:2 ही है। नाउ ये अमाउंट है वो बैलेंस CD में जाएगी। सो आई विल राइट डाउन हियर टू बैलेंस CD, बैलेंस CD फर्स्ट पार्टनर का 450, 450। सेकेंड पार्टनर जो है वो 3 lakhs। और प्रॉब्लम ये होगा स्टूडेंट्स, ये 3 lakhs में यहां लिखता हूं, थर्ड तो एज इट इज, थर्ड में कोई चेंज नहीं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, ये 3 lakhs अगर मैं यहां लिखूंगा तो 3 + 3 620 होगा, जबकि टोटल तो 480 लिखा है, तो 6,20,000 टोटल ज्यादा हो गया, तो हम यहां पे लिखेंगे 620। फिर यहां भी चेंज हो जाएगा, टोटल डेबिट का ज्यादा हो जाएगा 620। फिर से बोल रहा हूं डेबिट का टोटल ज्यादा हो गया ये लिखने के बाद। अब आप देखिए शांति से, पहले ए का टोटल है 480, 450 + 30 480, तो 480 में अभी भी कम पड़ रहे हैं कितने, 620 करने के लिए 140। सो हियर आई विल राइट डाउन कैश अकाउंट, डेफिसिट जो है वो जो कम पड़ रहे हैं वो। इसी तरह यहां पे आप टोटल करेंगे तो 480 है, 620 करने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं, 140। सो आई विल राइट डाउन हियर कैश अकाउंट डेफिसिट। इसका मतलब ये है कि संजना जो है वो 1,40,000 घर ले जाएगी और आलोक को 1,40,000 अभी भी लाने पड़ेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, कैश ऑफ द बैंक में जो यहां पे मैंने लिखा है संजना में, वो यहां क्रेडिट में लिखूंगा, यानी संजना अकाउंट सेकंड इफेक्ट 140 हो गया। और इसका मैं डेबिट लिखूंगा आलोक का, तो डेबिट में आएंगे आलोक अकाउंट 140। अब आप टोटल करेंगे, अगर बैलेंस शीट का पहले कैश अकाउंट बंद कर दो, तो कैश अकाउंट का आप टोटल करेंगे तो 166, सारा टोटल करते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले लिखा है 166, डेबिट साइड का मैं टोटल कर रहा हूँ कैश अकाउंट 60,000, 40,000
3 lakhs and 140 यानी 440. टोटल देखते हैं यहाँ पे, तो zeros will be there. अब यहाँ पे 6 and 6 12, 12 and 4 16 and 20, so 0 will be here. 1 2 1 3 and 4 7, so 7,06,000 is the total. 7,06,000 cash account total. 7,06,000 debit side cash account. क्रेडिट में अगर टोटल करेंगे तो पहले तो 7,06,000 ही लिख देंगे, जो टोटल डेबिट का है वो हाईएस्ट. नाउ यहाँ का टोटल देखिए, तो ये जो है डेबिट टोटल है कैश का, कैश अकाउंट डेबिट साइड. अब उसमें से कैश का क्रेडिट का माइनस करते हैं. क्रेडिट साइड टोटल ऑफ कैश वी हैव टू डिडक्ट. सो 30 plus 20 plus 140. So 30 plus 20 equal to 50. 50 plus 140, 190 will be minus. So it will be around 5,16,000. 5,16,000. 5,16,000 में 16,000 वो कैश का बैलेंस है. सो आई विल राइट डाउन हियर 5,16,000 कैश अकाउंट बैलेंस. This I will write down by balance CD. By balance CD. This we will transfer here asset side cash oblique bank 5,16,000. और ये जो आपने बैलेंस शीट लिया है कैपिटल अकाउंट का, उसकी सेकंड इफेक्ट तो आपको पता है हम कहां पे देते हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. सो हियर आल्सो यहाँ 3 lakhs है तो 3 lakhs ही रहेंगे इजी में. सो आई विल राइट डाउन हियर कैपिटल अकाउंट संजना आलोक एनईडी 450 3 lakhs 3 lakhs. So you will get here 10,50,000. So here total is 11,10,000. 11,10,000, and this side also if you go for total it is 11,10,000. Obviously you can do the total of asset also, and liability also already I have done 11,10,000, 11,10,000. So this is the question of admission. My humble request to students, practice makes man perfect. So do the sum again and again, and still if you have problem you can ask me the question anytime. I am ready to do the sum 5 times, 10 times. Thank you very much.